This is All India Radio. Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371-7117. I am Gaura Dhawan Lal and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Sharma. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लेकर आएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में हम आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कार्यक्रम में किसी कंपनी या विशेष स्टॉक के बारे में हम आपको जानकारी नहीं देंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106। हमारा तीसरा नंबर है 2371-7117। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा। Thank you, Nikhil. Domestic stock indices witnessed marginal gains. Sensex closes near the 51,600 level. Nifty settles at 15,350 level. Rupee appreciates to end below 78 rupees per dollar mark. And first tranche of sovereign gold bonds for the current fiscal opens today. Issue price fixed at 5,091 rupees per gram. घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त। सेंसेक्स 51,600 अंक के आसपास और निफ्टी 15,350 अंक के आसपास पहुंचकर बंद हुआ। रुपया आज कारोबार में बढ़त के साथ 77 रुपए प्रति डॉलर के नजदीक पहुंचकर बंद हुआ और चालू वित्त वर्ष के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना आज से खुली। इश्यू प्राइस 5,091 रुपए प्रति ग्राम। और सबसे पहले नजर डालते हैं घरेलू शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त देखी गई। वैश्विक शेयर बाजार के मिले जुले रुख के चलते घरेलू कारोबार में वृद्धि हुई। सेंसेक्स 51,600 के स्तर के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 15,350 के स्तर के नीचे आ गया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.46% की वृद्धि से 237 अंक ऊपर आकर 51,598 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.37% की बढ़त से 57 अंक ऊपर आकर 15,350 पर आ गया। Now let's take a detailed look at the stocks movement today. The Sensex and the Nifty today witnessed marginal gains amid mixed cues from global share markets. The Sensex closed near 51,600 level, while the Nifty settled at 15,350 level. The Sensex climbed 237 points or 0.46% to finish at 51,598, while the Nifty added 57 points or 0.37% to end at 15,350. In the broader market at the BSE, the mid-cap declined 1.39% and the small-cap index ended 2.95% down. In the Sensex pack, 17 companies logged gains and 13 logged losses. HDFC and Hindustan Unilever both gained 4% each. Ultratech, Cement and Asian Paints both climbed 3% each. On the other hand, Tata Steel plunged 5% and IndusInd Bank tumbled 2.9% and NTPC fell 2.2%. In sectoral indices at the BSE, 6 gained while 13 sectors logged losses. FMCG surged 1.2%, Tech Index rose 0.6% and IT sector index added 0.4%. On the other side, metal sectors lost the most as they fell 4.5%. Oil and gas index plunged 3.5% and the energy sector slipped 3.3%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 618 companies gained while 2,812 fell. Shares of 148 companies remained unchanged. Dr. Yamini, when we look at the market today, we see that somewhere it seems to have stabilized. It's a little steady. It was started fairly steady in the morning, didn't have too many ups and downs, and has ended marginally higher. Your views? Well, overall the market has taken the slowdown in terms of the FII selling
in a manner that it has recouped to the overall losses which were there in the last week. So we do see that the markets were affected much because of the FII sale as well as because of the Fed increasing the rates. But because the macroeconomic conditions of India are stable, and also we do see that the RBI had raised the interest rates by 90 basis points, which effectively did counter some bit of the inflation pressure, and there are likely to be steps taken in future which will contain the inflation. People are very positive about the economy, and that adds on to the overall value in the market. Right. We'd just like to remind our listeners that we have our financial expert, Dr. Yamini Agarwal, in the studio with us. So if you have any queries, please call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And while we await queries from our listeners, Dr. Yamini, what do you think of the FII movement? You know, which part and what is going to be the likely flow? Well, overall, because of the Fed continuously raising the rates and being aggressive about it, the balance of the FDI portfolios tend to shift towards the US, as well as there are other central banks which are likely to follow the lead, because inflation is a global phenomena, primarily because of the crude oil prices and the supply bottlenecks that are there. So we do see that there would be portfolio diversifications which will take place, which may be inclined towards the other economies. It is necessary that the RBI steps in to raise the interest rates so that the interest rate differentials don't favor the other economies over our economies. Okay. So that maintenance of the differential would be necessitated there. Right. और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं खजुराहो से जितेंद्र। जितेंद्र, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते, और यामिनी मैम को भी नमस्ते। जी नमस्ते मैम, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि SGX निफ्टी क्या होता है, सिंगापुर निफ्टी क्या होता है, और इसका हमारे शेयर मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम सेल्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो हम अपने आप को कब परफेक्ट माने कि अब मतलब हम परफेक्ट हुए, उसके क्या पैरामीटर है, इसके बारे में जरा पूछिए। जी देखिए, निफ्टी इंडेक्स होता है 50 का, जिसके अंदर 50 स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है कि वो कैसे बढ़ा या कम हुआ, और उससे जो है जो मार्केट है उसकी पल्स जांची जाती है। अगर वो बढ़ता है तो मानते हैं कि मार्केट ओवरऑल बढ़ा, अगर वो घटता है तो मानते हैं कि मार्केट घटा। ये 50 स्टॉक वो होते हैं जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन लेकर के आते हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जो स्टॉक की नंबर है मल्टीप्लाइड विद इट्स प्राइस। आपने दूसरा सवाल पूछा शेयर मार्केट में आप कब माने कि आप एक्सपर्ट हैं। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी नॉलेज गेन करते हैं शेयर मार्केट के बारे में और जिन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं उनके बारे में। जरूरी बात यह रहती है कि आप स्टॉक मार्केट्स की प्राइमरी मूवमेंट पढ़ें कि वो किस तरफ ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। आप स्टॉक्स के बारे में जानकारी पाएं कि कौन से लार्ज कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं और स्मॉल कैप्स हैं, और उनमें आप किस में निवेश करना चाहेंगे, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को देखते हुए, इंडस्ट्री फंडामेंटल्स को देखते हुए और कंपनी फंडामेंटल्स को देखते हुए। स्टॉक मार्केट्स कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, इसलिए ये जान लेना कि आपके पास हमेशा पूरी जानकारी होगी और आप प्रॉफिट बना पाएंगे, ये शायद एक गलत होगा। पर आप हर समय एक सुचारू रूप से उस चीज को जान करके एक बेहतर कदम उठा सकते हैं और वहां पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और बिल्कुल ये भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि सुनी सुनाई बातों की बजाय खुद का अध्ययन आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें और काफी सोच विचार कर ही निवेश करें। और इस बीच नोएडा से हमारे साथ अपने मुकेश जुड़ चुके हैं ऑनलाइन पर। हेलो जी मुकेश, प्लीज आपका रेडियो स्लो कर दें, उसके बाद आपका प्रश्न पूछिए। बिल्कुल रेडियो स्लो है सर। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग मैम, हमारा एक क्वेश्चन है कि जब भी शेयर स्प्लिट होता है या उस शेयर पे बोनस मिलता है तो उसका रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो मुझे ये कंफर्म करना था कि
शेयर जब 1/5 पे बोनस मिला है तो ऑलरेडी शेयर के प्राइस भी कम हो गए। जी देखिए, बोनस इशू का मतलब होता है कि आपको एक शेयर के बदले और शेयर मिलते हैं। तो 1:2 की रेशियो, 1:3 या 1:5 जिसकी रेशियो में आपको एक शेयर के बदले ज्यादा शेयर्स मिलते हैं। जब शेयर्स की मात्रा बढ़ जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है और मांग क्योंकि उतनी ही रहती है, सप्लाई बढ़ने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो मूल्य जो है उनका कम हो जाता है। यही एक मुख्य तौर पे कारण है। We are now joined from Mumbai by Hasmukhji. Please ask your question, Hasmukhji. Yeah, good evening, मार्केट मंत्रा। Good evening, जी। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो FIS की जो लगातार बिक्री चालू है, इस साल में अब तक उन्होंने जो 2 लाख करोड़ का जो इक्विटीज बेची हुई है, कहाँ से वो कुछ ऐसी फिगर मिल सकती है कि और कितना इनके पास में है और कितना बेच सकते हैं? ऐसे कोई डेटा मिल सकता है? थैंक यू। जी, यूजुअली आपको आरबीआई से डेटा मिल जाता है या आपको बहुत सारे प्रकाशन हैं जिनसे ये डेटा अवेलेबल हो सकता है और वो ही आपको बता सकते हैं कि कितना FIIs ने सेल किया या कितना उन्होंने परचेज किया। स्टॉक मार्केट्स पे भी इनका जो ओवर सेल ऑफ होता है या बाय होता है वो भी दिया जाता है। फरीदाबाद से हमारे अगले कॉलर है राजीव। हेलो। हेलो जी राजीव जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, if I buy jewelry, okay, I get it at discounted price. What is the maturity and brokerage on that? Can you repeat your question, please? जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हम मार्केट से लेते हैं उसकी मेच्योरिटी, फॉर एग्जांपल SGB 40 मैं ले रहा हूँ, उसकी मेच्योरिटी क्या होगी और उस पर टैक्सेशन क्या होगा और उसमें ब्रोकरेज क्या लगता है बाइंग एंड सेलिंग में? जी देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जब आप निवेश करते हैं तो आप गोल्ड में निवेश करते हैं, फॉर अ गोल्ड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और इस निवेश पे आपको 2.4% इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। आप इसको कभी भी बेच सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड और इसकी मैच्योरिटी वेरी करती है। इस स्पेसिफिक बॉन्ड की मुझे मैच्योरिटी नहीं पता, तो मैं आपको अगले प्रोग्राम में उसकी मैच्योरिटी बता सकूंगी, पर जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा वो आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा और जब भी मैच्योरिटी होती है तब आप उसके ऊपर उसको बेच या खरीद सकते हैं। इसमें ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेंगे। We now move on to our next caller, who's from Mumbai, Pankaj. Pankaj, please ask your question. Hi, I wanted to ask how long is this market condition going to continue? And is there any past data in which we know, okay, maybe the recession will happen or won't happen? And if it does happen, how long will it continue? And what should investors do now who have a long-term, maybe 2 or 3 years horizon? Thank you. Well, investors with 2 or 3 years horizon have a long horizon, and the markets are not likely to remain that volatile in those 2 years. The volatility is primarily because there is a lot of inflation pressure in the market, primarily because crude oil prices are very high, as well as there is supply bottlenecks because of COVID. These are two prime reasons where there are certain lockdowns which are still observed in many countries. Because of these pressures, we are seeing that the monetary policy is from an accommodative stance is shifting to a neutral stance in many economies, which is also one of the reasons why people believe that it can put forward the economies into recession. And it is believed that the US would be in technical recession because of its faster and aggressive moves of raising the interest rates. But it is not with certainty that people are claiming that it would be in recession. Especially for India, we are still projecting a growth rate of above 7% in the economy, and the macroeconomic fundamentals continue to support it. The positive aspect about the Indian economy is that it is mostly a domestic economy and works with the consumption in the economy, where the consumption is very high. So it is dependent on itself, and so most of the things should work in favor as and when the recoveries move. कोलकाता से अतानु शाह है हमारे साथ फोन लाइन पर। हाँ, गुड इवनिंग मैम, आई एम अतानु फ्रॉम कोलकाता। माय क्वेश्चन इज हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड व्हाट इज हिज जॉब? थैंक यू।
An independent director is a representative on the board of the company, primarily who is not associated with the company in any manner and is independent to view the overall working of the company. These directors don't take executive roles and primarily view the strategic working of the company from an outside as an outside person and give an independent thinking onto what the company does. Their role is extremely very important because what they say carries a lot of weight in terms of what the company is doing and what the company can do. We now welcome Narendra Chabra from Faridabad. Narendra, please ask your question. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल एक अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल एक कंसेप्ट चालू हुआ है कुछ टाइम पहले से। सो मेरा ये जानना है, क्या ये सभी कंपनीज के लिए जरूरी है या ऑप्शनल है कि वो दे सकते हैं ये अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल और नहीं? जी, हमें अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है। हम आपको इसके बारे में अगले प्रोग्राम में बता सकते हैं। Right. And now, before we take any more queries from our listeners, we'd like to go in for a short break. Please stay with us. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्र में स्वागत है। आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर इस प्रकार से हैं 2331-4444, 2371-7106। हमारा तीसरा नंबर है 2371-7117। यदि आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल करते हैं तो 011 लगाना ना भूलें। और रुपए पे नजर डाल लें तो आज अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ। घरेलू मुद्रा बाजार में रुपया 77 रुपए 98 पैसे प्रति डॉलर के कारोबार के साथ बंद हुआ था। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.26% की गिरावट से 104.42 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में आज सोना 20 रुपए की मामूली गिरावट में रहा। सोना 50,815 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 90 रुपए की मजबूती से 60,850 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। वहीं न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,841.20 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी $21.70 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। We now welcome from Mumbai, Mr. Pankaj Goyal. Pankaj, please ask your question. Good evening, Yamini ji. Good evening. I would like to know your preview on all marketing company sectors, on all marketing company. Now, crude oil is going up, and I have been holding a lot of all marketing company stocks for more than 3 years. There's not much of appreciation except bonuses which are paid or dividends which are paid and all that. So, what is your feedback on maybe all marketing? And we had government have decided about Bharat Petroleum being privatized, and which is now not happening and all. So, what is your view on it? Well, petroleum companies are likely to do well. With the increase in the crude oil prices, it is going to get transmitted to the petroleum and the diesel prices. Though it has been stalled for the moment, but every time there is an increase, there is increase in the international crude oil prices. There is also a subsequent increase in the domestic markets. Any increase in the international markets helps the oil marketing companies to also increase the prices. So they should do well. So profits continue to remain intact with them. Also, the government has reduced the taxes primarily to support the taming of the inflation, and to also ensure that people are given relief, the common man is given relief,
at that time. So I believe the oil sector should do well, and there should be an increase in the prices also in terms of their profits as well. और अब एशियाई शेयर बाजार पर हम नजर डालते हैं तो एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुझान रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.4% की बढ़त में रहा, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में शुरुआत में मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन यह बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ। जापान के निक्केई में 0.7% और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% लुढ़क गया। यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान लाभ में चल रहे थे। लंदन के FTSE 100 में 1.2% का उछाल आया। फ्रांस का कैक 0.3% चढ़कर और जर्मनी का डेक्स 0.6% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। तो यामिनी जी, आज एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखा गया, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में भी थोड़ी सी बढ़त देखी गई है। इस रुझान को आप किस तरह से देखती हैं? जी, एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि मार्केट्स धीरे धीरे गिर रही थी और इससे एक नेगेटिविटी आ रही थी मार्केट में कि मार्केट्स फर्दर बॉटम आउट करेंगी, और जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज करती हैं लोगों का उस पर विश्वास बढ़ता है और लोग आगे निवेश करने के लिए और बेहतर तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि मार्केट्स कंटिन्यूअसली गिर रही थी, इसलिए ये जो आज का ट्रेडिंग सेशन था एक काफी हद तक स्टेबल सेशन माना जा सकता है, जो ओवरऑल पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। We now have from Noida, Rajneesh. Rajneesh, please ask your question. हाँ, थैंक यू मैम। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार मैडम, सबसे पहले मैं यामिनी मैम के लिए कहना चाहूंगा कि वो 30 मिनट्स के प्रोग्राम में इस तरीके से कभी क्वेश्चन आंसर सेशन हो या वैसे सेशन हो, इस तरह से एक्सप्लेन कर दें कि 30 मिनट्स में काफी सारी नॉलेज गेन होती है। एंड सेकंड, रिगार्डिंग क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मैडम हमारे मार्केट गिर रहे हैं तो एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन रेट के कंट्रोल करने के लिए वो फेड अपना रेट बढ़ा रहा है और एफआई पैसा निकाल रहे हैं यहाँ से। तो मैडम थोड़ा सा ये कुछ बता पाएंगे कि कब एफआई पैसा यहाँ लगाना शुरू करेंगे, और यह वो किन बात पे डिपेंड करेगा कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा तब एफआई पैसा लगाएंगे और मार्केट हमारे थोड़े से बढ़ेंगे, ये कब साइकिल चलेगी मैम? थैंक यू वेरी मच। जी देखिए, एफआईआई तब निवेश करते हैं जब उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता है। किसी भी निवेश के अंदर उसे अच्छा रिटर्न जब मिलेगा, उसके लिए वो देखते हैं कि वो यूएस में मिल रहा है या किसी और देश में मिल रहा है या इंडिया में मिल रहा है। क्योंकि जब वो निवेश करते हैं वो अपने आप को अलग अलग जगहों पे निवेश करते हैं ताकि उनका जो रिटर्न है वो बढ़ सके और कम से कम उनको रिस्क हो। जब फेडरल रिजर्व बैंक रेट हाइक करता है तो क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, चाहे वो ट्रेजरी बॉन्ड्स हो, चाहे वो कई भी और निवेश के साधन हो, उसकी वजह से जो एफआईआईज हैं उनका रुझान यूएस की तरफ हो जाता है। या और देशों में जैसे सेंट्रल बैंक्स डिसाइड कर रहे हैं कि अब वो अकोमोडेटिव स्टैंड से न्यूट्रल स्टैंड में आएंगे और अपने रेट्स बढ़ाएंगे, तो वो जो बाकी मार्केट्स हैं वो उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं। इंडिया के लिए जरूरी ये है कि जो एफआईआईज हैं उनकी मूवमेंट कंटिन्यूअसली बनी रहे, जिसके लिए जरूरी है कि ग्रोथ रेट प्रॉमिसिंग रहे, जो आगे आने वाले सत्र में या आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये भी माना जा रहा है कि 7% से ऊपर रहेगी। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो बाकी के पैरामीटर्स हैं जिनसे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आती है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रांग रहें, और जो रिफॉर्म का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली जारी रहे, जिसके अंदर काफी हद तक आपने रिफॉर्म्स देखे होंगे, डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और अब जो अग्निपथ स्कीम है वो भी। बहुत सारी ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट ला रही है और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में मेंटेन रहें। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स जो है साथ कंपेरेबल हों ताकि एफआईआईज यहाँ पे अट्रैक्टिव हों, ताकि उसकी वजह से जो आरबीआई है उसे अपना रेट बढ़ाना होगा, जैसे उसने अभी 90 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। और हमारे साथ दिल्ली से नंद गोपाल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो जी नंद गोपाल, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मार्केट टीम को। मेरा क्वेश्चन है आज पर्टिकुलरली मार्केट का बिहेवियर, कैश मार्केट में तो काफी गिरावट रही मिड टर्म और स्मॉल कैप में, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही राइजिंग ट्रेंड दिखा रहे थे, इससे क्या इंडिकेशन क्या है? थैंक यू जी। इससे इंडिकेशन है कि एक ओवरऑल पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर और ये काफी हद तक स्टेबलाइज की है डाउनवर्ड रिविजन्स के बाद।
करेक्शंस हमने काफी देखी हैं ओवर वैल्यूएशंस के लेकर के, पर जो मार्केट्स है उसमें जो फियर वे कर रहा था इकोनॉमिक स्लो डाउन का, वो इतना वे नहीं कर रहा, और जिसका असर हमें आज की ट्रेडिंग में नजर आया है। और एक जो बेहतर प्रदर्शन है उसकी वजह से मार्केट में ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी आया है। काफी हद तक जो स्टेटमेंट्स आरबीआई गवर्नर या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा भी आई हैं, उनमें पता चलता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो कंटिन्यूअसली जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रिपोज करती है और उसको बताती है कि वो रिजिलिएंट है, और जिसकी वजह से माना जाता है कि वो ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगी। इसके बावजूद कि जो महंगाई का दर है वो 6% से ऊपर जा चुका है, पर फिर भी उसको काबू में लाने की कोशिश की जाएगी। We'll take a quick look at, Dr. Yami, the oil prices. Oil prices were stable today, struggling to reverse last week's losses as the market balanced tightening supplies with concerns about slowing global economic growth. Brent crude was trading at $113.10 per barrel, while WTI crude prices were $109.90 per barrel. मुंबई से हमारे साथ नरोत्तम जुड़े हुए फोन लाइन पर। हेलो, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। We earlier spoke about, how the rupee had kind of, it's been a good day for the rupee because we can only go day by day. Why do you think this has happened? Well, overall, the fear that there can be a positive, there can be a possible economic slowdown, I think is wearing off because the strengths of the economy continue to be growing with the economic reform processes that have been taking place slowly and gradually. Also, the schemes which protect the economy in terms of its social infrastructure, which includes the financial inclusion schemes, whether it is for farmers with crop insurance, or whether it is the Atal Pension Yojana, or it is Ayushman Bharat, or the entire digitalization program. Also, if you see the Agnipath scheme, which is bringing about an employment to so many youth and training them for the services, itself is a very revolutionary scheme by the three forces. So this itself is a lot of positivity in the economic forum, where the youth is being given an opportunity, and the demographic dividend that we enjoy will be utilized in the best possible manner. Right. We'll take a quick look at gold bond prices. The first tranche of sovereign gold bonds SGB scheme for the current fiscal opened for subscription today. The SGB scheme 2022-23 Series 1 will remain open till Friday. That is till the 24th of this month. The issue price has been fixed at 5,091 rupees per gram of gold. Investors who apply online will get a discount of 50 rupees per gram. So for online investors, the issue price will be 5,041 rupees per gram, and the date of issuance is the 28th of this month. और डॉक्टर यामिनी, हमसे बात करने के लिए, हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और चलने से पहले श्रोताओं, एक बार मुख्य समाचारों पर नजर फिर से। घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स 51,600 अंक के आसपास और निफ्टी 15,350 अंक के आसपास पहुंचकर बंद हुआ। रुपया आज के कारोबार में बढ़त के साथ 78 रुपए प्रति डॉलर के नजदीक पहुंचकर बंद हुआ। और चालू वित्त वर्ष के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना आज से खुली। इश्यू प्राइस 5,091 रुपए प्रति ग्राम। The headlines: domestic stock indices witnessed marginal gains. Sensex closes near the 51,600 level. Nifty settles at 15,350. Rupee appreciates to end below 78 rupees per dollar mark. And first tranche of sovereign gold bond for the current fiscal opens today. Issue price fixed at 5,091 rupees per gram. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.